Hello everyone. So welcome back to yet another very important topic on matrix and determinant. So in this particular lecture, we'll try to solve some simultaneous equation by using matrix method. So there will be two types of problem. So one with two variable and the second one will be with three variable. Okay, दोनों ही मेथड हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो अगर दो वेरिएबल है तो कैसे सॉल्व करते हैं और अगर तीन वेरिएबल है तो हम लोग उस साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे. But before coming to this particular lecture, I'll request you to kindly watch the lectures on minor and cofactor and how to find adjoint and inverse of a matrix. क्योंकि adjoint और inverse जो matrix है उसको use करके हम लोग यहाँ पे इस सिस्टम को सॉल्व करने वाले और डिटरमिनेंट भी हमें यहाँ पे एक्सपांड करना पड़ेगा. ओके, तो इसलिए 3/3 या तो 2/2 डिटरमिनेंट कैसे ब्रेक करते हैं, सो उसका जो लेक्चर है वो भी ऑलरेडी आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग पहले देख लीजिएगा. नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर, नाउ सी देयर फर्स्ट वी हैव टू गिवन इक्वेशंस. दो इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो x और y है ये क्या है, वेरिएबल्स हैं, और बाकी जो 6 अलग अलग मतलब यहाँ पे डिफरेंट मतलब कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये जो कोफिशिएंट्स है दीज आर ऑल व्हाट, कांस्टेंट्स. सो ये सब कांस्टेंट है. तो पहले हमें क्या करना होगा, दिस system of equations can be written in matrix form as. ओके, सो जो भी इक्वेशन दिया रहेगा पहले हमें उसको मैट्रिक्स मतलब इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा. So the matrix equation will be like this: ax equals to what, b. Now what is a, what is x and what is b? A means a is called coefficient matrix. So आप लोग देखिए पहला जो इक्वेशन है वहाँ पे x और y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, x के साथ है a1 और y के साथ है b1. Similarly in second equation what are the coefficients, a2 and then what, b2. Then comes capital X. Capital X मतलब वेरिएबल, यहाँ पे दो वेरिएबल है x and y. And then capital B. Capital B is what, C1 and C2. ठीक है. So ये जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग कॉलम में क्यों लिखे, so ये जो इसका जो ऑर्डर है कितना है, 2/2. तो हमें क्या मालूम था, मल्टीप्लिकेशन कब होता है, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स. तो यहाँ पे जो रो है उसको 2 आना है. ओके, सो इट शुड बी 2/1. ठीक है, तो इसलिए ये जो है ये जो मैट्रिक्स है क्या है, ये कॉलम मतलब कॉलम मैट्रिक्स में आ गया. और रहेगा क्या, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1. सो इसलिए राइट साइड वाला जो मैट्रिक्स है देयर इज ऑल्सो ए कॉलम मैट्रिक्स. ओके, नाउ इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू इक्वेशन, नो, तो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट बट यू जस्ट चेक. इफ यू मल्टीप्लाई रो विथ कॉलम, सो व्हाट विल गेट, फर्स्ट रो एंड दिस कॉलम a1x plus b1y. Similarly if you multiply second row with this column, you will get a2x plus b2y, and right side में क्या था, it's c1 and then what, c2. okay, now if you compare again you will get this same system of equation. तो इसलिए जो system of equation दिया रहेगा we can write those in matrix form. ठीक है, matrix form में लिख सकते हैं क्योंकि उसको multiply करने के बाद जो equation है फिर से हमें वही मिलेगा. So this is the first step. We have to write all the given equation in what, matrix form. Second step is we have to find the determinant A. Okay, second step is we have to find determinant A and it should be not equal to 0. Okay, then A inverse exists. ठीक है, A inverse exists. Then we have to find adjoint A. Okay, adjoint A निकालना होगा. उसके बाद हमें इन्वर्स निकालना होगा, A inverse. So A inverse का फॉर्मूला क्या था, 1 by determinant A into what, adjoint of A. And in the final step you see what is the equation number 1. Suppose this is equation number 1. It is ax equals to how much, b. Now if you multiply both side by A inverse ax equals to A inverse b. Okay, multiplying both side by A inverse. So यहाँ पे जो A और A inverse है ना, A और A inverse multiply होने के बाद क्या आएगा, I, identity matrix. So ix equals to A inverse b. So I into x, identity matrix के साथ अगर हम लोग कोई भी एक matrix multiply करेंगे, how much will get, x. So x equals to A inverse b. So this, in this particular relation we will put the value of A inverse and then what, b. After multiplying we can easily find the matrix capital X. Okay, so let us take some problems. So
फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक ए 2x2 प्रॉब्लम. एक 2x2 प्रॉब्लम में हम लोग देखते हैं हाउ टू सॉल्व इट बाय यूजिंग व्हाट, मैट्रिक्स मेथड. सो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखिए आप लोग, वी आर टेकिंग 2 इक्वेशंस, ओके, और 2 वेरिएबल है. सो द गिवन system of equations can be written in matrix form as what, ax equals to how much, b. Let it be equation number 1. So यहाँ पे a कितना है, where a equals to, a means coefficient matrix. So in the first equation, what are the coefficients? What are the coefficients of x and y? पहला जो इक्वेशन है उसमें x के साथ क्या है, 1, and then y के साथ -2. Now see the second equation. Second equation में क्या है, -3 and then 5. So it is -3, 5. Then capital X. Capital X क्या होगा, x, y, and then b. Capital B means constant of the right hand side. So पहला जो इक्वेशन है उसमें क्या है, 4. सेकेंड इक्वेशन में कितना है, -7. So it is 4 and then -7. सो फर्स्ट स्टेप इज डन. ये हम लोग का पहला स्टेप है. जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम लोग को क्या करना है, जो मैट्रिक्स फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना है. नाउ द सेकंड स्टेप वेयर यू हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट है. ओके, सो इट्स 1, -2, -3 and then what, 5. So if you expand it, it's 5, then 6. How much it is, -1. So it's a non-zero number. So therefore A inverse exists. Okay, then we have to find what, adjoint matrix. So adjoint matrix कैसे निकालता है वो हमें ऑलरेडी मालूम है. सो अगर आप लोग वो वाला लेक्चर आप लोग मिस कर दिए, सो काइंडली गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर माइनर एंड कोफैक्टर lecture so that you'll understand this particular problem very easily. Okay, now is 1 plus 1, so it is even number, positive, then negative, then again negative, and then what, last one is 2, 2. So it is how much, positive. So पहले 1 का कोफैक्टर क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके हम लोग क्या लिखेंगे, 5, एंड देन सेकेंड, इसके मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करना है. सो क्या आएगा, -3, here it will be -2, and then here it is 1. No, so this is 3 and then 2 and then 1. सो हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखना है. सो एडजॉइंट कैसे निकाल, मतलब हम लोग लिखेंगे जो फर्स्ट रो है उसको हमें कॉलम में लिखना होगा, क्योंकि एडजॉइंट का डेफिनेशन था ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर. ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर. सो पहले 5 और 3 था, तो उसे हम लोग यहाँ पे कॉलम में लिखे हैं. एंड देन यू हैव टू राइट द सेकेंड रो in second column, 2 and 1. So this is our adjoint matrix. Okay, now we have to find the inverse. So what is the formula for A inverse? 1 by determinant A into adjoint of A. So it is 1 by -1, 5, 2, 3, 1. Okay, so यहाँ पे बाहर में क्या है, 1 by -1 ना. सो ये तो 1 है, तो इसलिए ये नंबर से हम लोग अंदर में जो 4 एलिमेंट है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे. बट इन अदर केसेस इफ द नंबर इज डिफरेंट, इफ द फ्रैक्शन इज डिफरेंट, सपोज 1 by 5, 1 by 10 और 1 by 2, देन डोंट मल्टीप्लाई है. ओके, विल मल्टीप्लाई इट लेटर. सो यहाँ पे 1 है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, -1. सो इट्स -5, -2, -3 एंड देन -1. ओके, सो नाउ द फाइनल स्टेप. सो फाइनल स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में क्या था, equation 1 implies ax equals to how much, b. So this implies x will be how much, a inverse b. Okay, हमेशा a inverse b आता है क्योंकि हम लोग a inverse से मल्टीप्लाई किए थे. Don't write b into a inverse, then you will get a different and wrong answer. Okay, so a inverse. So a inverse का वैल्यू कितना है, so it's -5, -2, -3, -1, and then b. b is our 4 and -7. Okay, so it is 4 -7. now to multiply it. so multiplication हमें आता है कैसे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट इंटू फर्स्ट, सेकेंड इंटू सेकेंड. so it's -20 plus 14, right, -20 plus 14. okay, then again second row in this column, -12 plus 7. so this implies in left hand side what we have, capital X. capital X मतलब क्या था, xy, एंड यहाँ पे कितना आएगा, इट्स -6 एंड देन -5. सो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, x इक्वल टू -6, y इक्वल्स टू हाउ मच, -5. ओके, सो दिस इज द आंसर.
of the first problem, x equals to -6 and y equals to -5. Now the answer is correct or incorrect वो हमें कैसे मालूम चलेगा? ओके इतना लंबा कैलकुलेशन करने के बाद अगर कहीं पे बीच में मिस्टेक हो गया तो पूरा नंबर ही हम लोग का जाएगा। तो इसलिए हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं आंसर जो है करेक्ट है या इनकरेक्ट है। जो पहला इक्वेशन था वो क्या था? x माइनस ट्वाइस वाई इक्वल टू 4। ओके ax माइनस ट्वाइस वाई इक्वल टू 4। तो हमें क्या करना है, अभी लेफ्ट साइड में वैल्यू बैठाना। तो x का वैल्यू हमें क्या मिला? -6 और y का वैल्यू कितना मिला? -5। तो इस -6 + 10 तो कितना आ गया? 4। ठीक है ना? तो आंसर करेक्ट है। सो मीन्स you'll get the full marks, don't worry. Okay, now coming to the last problem, which is a 3 by 3 sorry, this is a 3 by 3 matrix. So when we'll get 3 by 3 matrix if there are 3 equations and 3 variable. तो यहाँ पे 3 अलग अलग इक्वेशन है और वेरिएबल कितना है? 3 है, x y z। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप लोग देखिएगा 3 by 3 मैट्रिक्स वाला प्रॉब्लम भी एग्जाम में आता है। ओके नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू डू, वी हैव टू राइट दिस 3 इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ax इक्वल्स टू हमारा b, पहले हमें ax इक्वल्स टू b फॉर्म में लिखना है। सो कैपिटल A क्या था? कोफिशिएंट। जो पहला जो इक्वेशन है उसका उसको देखिए, कोफिशिएंट क्या है? x के साथ 1, y के साथ 2 और z के साथ 1। नाउ सेकेंड इक्वेशन, आप लोग सेकेंड इक्वेशन पे देखिए, वहाँ पे y है ही नहीं। तो इफ y इज एब्सेंट देन कोफिशिएंट विल बी 0। सो व्हाट इज द कोफिशिएंट? कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, y इज एब्सेंट सो 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ z इज हाउ मच? 3। एंड इन द लास्ट इक्वेशन यहाँ पे z एब्सेंट है, सो 2 -3 एंड कोफिशिएंट ऑफ z इज हाउ मच? 0। 3 वेरिएबल है, सो x विल बी आवर x y एंड देन व्हाट? z। और b मतलब राइट साइड का जो कोफिशिएंट है 7 11 and then what? 1. So first step done, we made all the 3 equation in matrix form. Second form में क्या करना है? हमें डिटर्मिनेंट निकालना होगा। ठीक है, so 1 2 1 1 0 then 3 2 -3 and then what? 0. So okay, so डिटर्मिनेंट कैसे ब्रेक करते हैं हमें मालूम है। So just kindly break this determinant। 3 by 3 डिटर्मिनेंट कैसे ब्रेक करते हैं उसका वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा। Okay, you kindly go and watch. So after expanding this determinant, you will get how much? 18. So 18 is a non-zero term. That means what? A inverse exists. ठीक है? So if determinant A not equal to 0, no? तो A inverse does not exist. तो generally क्या होता है? Solution नहीं मिलता है। लेकिन कभी कभी determinant A 0 आने के बाद भी मतलब जो solution है उसका solution मिलेगा, लेकिन उसका जो procedure है वो थोड़ा अलग है। तो मैं कभी नेक्स्ट दूसरा वीडियो में उसको मैं अपलोड करके दूंगा। सो यहाँ पे फॉर द टाइमिंग यू जस्ट नो दैट इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब हम लोग यहाँ पे इनवर्स लिख सकते हैं। मतलब सेकेंड स्टेप इज वी हैव टू फाइंड द कोफैक्टर्स। ओके, कोफैक्टर निकालना है। यहाँ पे टोटल 9 एलिमेंट है, सो कोफैक्टर निकालना होगा A11 A12 A13। सो जो कोफैक्टर है मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमें मालूम है हाउ टू फाइंड द कोफैक्टर्स, otherwise our video will be little bit long. So A31 A32 and A33। okay, so first हमें क्या करना है? so इवन और ऑड पोजीशन को चेक करके यहाँ पे हमें प्लस माइनस देना है। ठीक है, सो पहला क्या होता है? प्लस देन माइनस देन अगेन प्लस माइनस देन प्लस माइनस प्लस। ठीक है, सो उसके बाद जो पहला जो एलिमेंट है उसका रो कॉलम को डिलीट करके हमें 4 एलिमेंट एक डिटरमिनेंट में लिखना है और उसको ब्रेक करना है। सो उसी हिसाब से अगर हम लोग ईच एंड एवरी जो प्रॉब्लम है सबको हम लोग यहाँ पे एक एक करके ब्रेक करेंगे, व्हाट विल गेट? जो फर्स्ट कोफैक्टर है वो आएगा 9। ठीक है, आप लोग इसको कीजिएगा, इट विल बी 9। देन सेकेंड विल बी हाउ मच? -6। देन A13 इट विल बी योर -3 and then 21 A21 is -3 A22 after calculation you will get -2 A23 will be 7। तो आप लोग A के जगह में C भी लिख सकते हैं, C11 C12। ओके, so it's up to you, whatever you want you can write। It's 6 then this is -2 and our last element will be -2। ठीक है, so ये मतलब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो ऑलरेडी हम लोग दो वीडियो में मतलब इसको डिस्कस कर चुके हैं हाउ टू फाइंड द कोफैक्टर्स। सो पहले आप लोग कोफैक्टर निकालिए एंड देन व्हाट विल डू, विल राइट द एडजॉइंट मैट्रिक्स, राइट? एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट मैट्रिक्स को हमें कैसे लिखना पड़ता है? जो पहला जो रो है ना, पहला जो रो है उसको हमें कॉलम में लिखना होगा, क्योंकि व्हाट इज एडजॉइंट? एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो इट विल बी 9
-6 -3 and then -3 -2 -7 and then 6 -2 -2, ठीक है। सो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, एडजॉइंट ए मिल गया। ओके, नाउ विल फाइंड ए इनवर्स। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए इनवर्स? इज 1 by डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो 1 by डिटर्मिनेंट ए कितना था, 1 by 18। सो देन एडजॉइंट इज 9 -3 6 -6 -2 -2 -3 -7 एंड देन -2। सो यहाँ पे बाहर में 1 by 18 है, ठीक है। सो मैंने पहले ही बोला था अगर बाहर में कुछ बड़ा फ्रैक्शन है सो काइंडली डोंट मल्टीप्लाई इट, ओके, नहीं तो बाद में बहुत सारा फ्रैक्शन आ जाएगा और कैलकुलेशन में रॉन्ग होने का भी चांसेस है। नाउ व्हाट इज इक्वेशन 1? इन इक्वेशन 1 वी हैव ए एक्स इक्वल्स टू हाउ मच, बी। सो दिस इम्प्लाइज आवर एक्स विल बी इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ठीक है। सो ए इनवर्स अभी हमें मिला यहाँ पे 1 by 18, देन इट इज 9 -3 6 -6 -2 -2 and then last one is our -3 -7 and then -2, ठीक है। 2 3 8 2 3, सो 8 2 3 7 होगा, इट्स नॉट -7, इस 7 आ जाएगा, ओके। दिस इज प्लस, ओके, +7। ओके, सो नाउ बी, व्हाट इज बी? बी क्या था? बी था 7 11 and 1, ओके। सो इट इज 7 11 and then what, 1। so this implies our left side is what, x y and z। कैपिटल x का वैल्यू x y z था, so 1 by 18। now what will do, will multiply, ठीक है। रो के साथ कॉलम मल्टीप्लाई करना, पहले फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम। सो कितना होगा, 9 7 जा 63, फर्स्ट इंटू फर्स्ट, देन सेकेंड इंटू सेकेंड -33 एंड देन 6, ठीक है। फर्स्ट इंटू फर्स्ट, सेकेंड इंटू सेकेंड, थर्ड इंटू थर्ड। अभी नेक्स्ट हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, सेकेंड रो के साथ जो कॉलम है -42 -42। सो ये तो -42 था, ये +6 है, सॉरी ये +6 था। तो यहाँ पे A12 ना, A12 क्या था, A12 इज -6, ओके। सो उसको थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं, इस प्लस था ना माइनस था ये, ओके। सो ये वाला हम लोग एक बार चेक करते हैं। सो दिस इज, इफ वी डिलीट दिस रो एंड दिस कॉलम, सो हाउ मच विल गेट 0 and then -60, -60, ओके। सो इस -42 एंड देन कितना आएगा, -22 एंड देन -2, ठीक है। एंड देन फाइनली यहाँ पे प्लस या माइनस का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। सो कोफिशिएंट हम लोग ठीक लिखे थे कि नहीं, इस 1 2 1 1 0 3 2 -30, ठीक है। सो ये जो एलिमेंट है ये 1 2, A12 मतलब कितना आएगा, नेगेटिव, ओके ओके, 1 मिनट है। सो 1 2 के लिए माइनस, और ये क्या था 1 1, ओके। सो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया ये। सो 1 + 2 उसके लिए माइनस एंड देन इस 0 -6, ओके। सो इट विल बी +6, ओके। सो इसलिए आप लोग इसको थोड़ा क्रॉस चेक मतलब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार ये मतलब रॉन्ग होता है तो लास्ट में जो आंसर है वो भी रॉन्ग आ जाएगा, ओके। सो इट विल बी हाउ मच, +42, ओके, +42, 42 -22 देन -2, okay. Then third row and this column, so it is -21 +77 and then -2। so कैलकुलेशन करने के बाद अभी क्या आएगा, so 63 -33 36 and then is 22 20 -18 42 -22, okay, 18 and then finally 77 21 and then -2, how much it is, 54। so अभी देखिए बाहर में जो हम लोग 1 by 18 रखे थे ना, so अभी इसको बहुत इजीली हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। so how much it will be, 2 1 and then how much, it is 3। so if we compare now, x equal to how much, x is 2, y equals to 1 and z equals to how much, 3,
Okay, so these are the three different values of x, y, z. Now let us check that values are correct or incorrect, because हम लोग मतलब वहाँ पे जो कोफैक्टर था उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम आ गया. So now let us check. So we can take any equation. First equation is what? X plus twice y plus z. Okay, so x plus twice y plus z equals to how much? 7. So हमें x क्या मिला? 2. Then y कितना आया? 1. And then z is how much? 3. So it's 2 plus 2 4 7. Okay, now it is correct. Okay, so if the answer is not matching, suppose आंसर लास्ट में जाके नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे कैसे डाउट हो गया, ये जो एलिमेंट है ना, तो ये -42 लिखने से ये 8 मैंने 18 नहीं आता है. सो अगर ये इफ इट इज़ नॉट 18 तो 18 से कैंसिल नहीं होगा, कुछ दूसरा फ्रैक्शन में आ रहा था. ठीक है, तो इसलिए मुझे थोड़ा डाउट हुआ, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको क्रॉस चेक कर लिए. तो सपोज मान लीजिए आप लोगों को ये पता नहीं चल रहा है जब रॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ, तो लास्ट में आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिए. सो इफ इट इज़ रॉन्ग देन आप लोग उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा. Okay, so I hope you understand both the problems, how to solve a how to solve a problem with 2 variable and 3 variable. Okay, so you do some more problems for better understanding. जितना आप लोग प्रॉब्लम इसको मतलब सॉल्व करेंगे उतना ही आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. So I hope so my videos are helpful for all of you. So if you like my video, kindly share with your friends, and thank you very much for watching.